Hello and very good evening to all of you. I, Krishnakanta Himram, hereby take the privilege to welcome you all in our 4th year celebration of 2020. Well, दिसारी का celebration हो और कुछ धमाका ना हो तो हो ही नहीं सकता. And why wait? Let's begin our celebration time. Well, before that, we'll go into a small prayer by our very dearest Pradeep uncle. করি আমরা সকলে নীরব হই আর আমাদের হৃদয়কে সুস্থির করি। পবিত্র পবিত্র অতি পবিত্র প্রভু, তুমি আমাদের জীবন্ত ঈশ্বর, তুমি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর প্রভু। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আজকের দিনে, কেন দিশারিকে 4 বছর সম্পূর্ণভাবে তুমি বহন করেছো। তুমি দিশারি দ্বারা অনেক আশ্চর্য কাজ করেছো, অনেক ইউথদের মধ্যে তোমার চালনা দিয়েছো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। যারা দিশারির মধ্যে দ্বারা তোমাকে চিনেছে, তোমাকে জেনেছে, আমরা তোমার দিশারি দ্বারা অনেক শিক্ষা, অনেক পরামর্শ আমরা পেয়েছি, তাই প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই। এই ছোট প্রার্থনা প্রিয় যিশুর নামে চাইলাম, শুনো, গ্রহণ করো, আমেন। Good evening to all of you and praise the Lord. Well, my name is Joyce Shibasti and I'm glad to say that I'm one of the student leaders of Dishari. Before Dishari, we never heard any type of student ministry. The first question arises, what is Dishari? Dishari का मतलब क्या है? Dishari का मतलब यही है किसी को सही दिशा दिखाना. That's Dishari. Therefore, today I'll be sharing how this Dishari has created, how this journey has started. Well, it started from a small WhatsApp group. I met with one brother who was doing PhD in IIT Kharagpur. I really liked his mentality, spirit to do something positive with strong faith in God. मुझे उनका Christian principles जो थे मुझे बहुत पसंद आए थे उनके अंदर, and वो एक true believer का निशानी है. And we used to take our Bible study, and he introduced us with IELTS camp, and we went to that camp, and after going there, we have seen 1,500 students, and we were so much excited and motivated and encouraged. After coming back from IELTS, Bhaiya has given us a challenge to do something for Kharagpur in our city. When he said, हम लोगों को तो पहले इतना शौक लगा कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, because though we belong to a small city, but basically we live in a village, and we always used to think that we are so backward. We don't have money, we don't have resources. कैसे सब कुछ होगा, कैसे पॉसिबल है? But we took a faith step, and वो बोलते हैं ना, एक छोटे से विश्वास से परमेश्वर बहुत बड़े कामों को कर सकते हैं, and वही हुआ. The great boom happened when in first camp around 180 students we got, and we were so much happy. Students were excited and they wanted to know more. That time we thought that why once in a year? Let's do it in every month. Every month में फेलोशिप करते हैं, एंड अभी भी स्टिल हम लोगों को मंथली फेलोशिप अभी भी चल रहा है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरी मंथ में हमसे जुड़ते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं और वो भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं. एंड इन first camp we did in 2016, in 2017 second camp, and 2018 third camp. We have celebrated 3rd year of anniversary, and this is our 4th year of anniversary of Dishari, and we are so much happy. And throughout this journey प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया. Because of his blessings हम लोगों ने मतलब इतना कुछ कर पाए, एंड प्रभु हमें बहुत जगह पे यूज़ कर रहे हैं. यू नो, इन खड़गपुर यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज कैंपसेस है, बहुत स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, जो लोगों को पता नहीं है, सही दिशा नहीं पता क्या करें. दे वर सो डिप्रेस्ड, बट प्रभु ने हमें यूज़ किया, एंड हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से जुड़े, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमनीज एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस वी हैव. सो बहुत सारे चेंजेस आया इस मिनिस्ट्री के थ्रू. प्रभु ने बहुत कुछ किया है एंड खड़गपुर में कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि स्टूडेंट मिनिस्ट्री भी होता है, लेकिन अभी हम लोग बहुत स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, एंड प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके राज्य के कामों के लिए. And we believe that day by day God will keep adding more and more students with this ministry. And I want to encourage you all to do something in your area, in your place. आप भी कुछ ऐसा करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में आप भी वहाँ के एक आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का कारण बने. I want to give you one more challenge to be a prayer partner with us. Thank you so much.
सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। हाँ यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। হাই এভরিওয়ান, আমার নাম ইলি মোচারি, আমি খড়গপুরে থাকি। আমরা ইংরেজিতে LOVE কে লাভ বলি, বাংলাতে প্রেম বলি, আর হিন্দিতে মহাবত বলি। আদৌ কি ভাষাগত দিক থেকে আজকে কি লাভের ডেফিনেশনটা কি চেঞ্জ হতে পারে? আসুন আমরা এই নিয়ে কথা বলি। লাভ যেটা সবাই উপভোগ করতে চায়, সবাই নিজের লাইফে চায়, সবাই চায় যে কেউ, সবাই খুঁজছে সেই ট্রু লাভটাকে, হয়তো আপনিও খুঁজছেন। আজকে আমিও এক সময়ে সেই ট্রু লাভটাকে খুঁজছিলাম, কেন কি সেই সময় আমি খুবই অশান্তিতে ছিলাম, আমার লাইফে কোনো শান্তি ছিল না। আমি খুঁজছিলাম যে কেউ হয়তো আমার লাইফে এসে বলুক যে হ্যাঁ সব ঠিক হবে বলে। কেন কি আমি সেই সময় আমার পারিবারিক সমস্যার জন্য আমি নিজেকে এত কঠোর করে রেখেছিলাম, সবার কাছ থেকে এত তিক্ততা আমি সবার প্রতি আমার মনটা হয়ে গেছিল। কিন্তু এটা দিয়ে ছিল না আমার কাহিনী, আমার লাইফটা চেঞ্জ হলো। আমি একটা কথা বুঝলাম যে লাভের ডেফিনেশনটা আমি একটা পর্যায়ে, একটা মুহূর্তে এসে বুঝলাম যখন আমি দিশারিতে আসলাম। দিশারিতে দেখলাম যে আজকে ভাই বোনেরা একে অপরের প্রতি প্রার্থনা করছে, একে অপরের জন্য প্রার্থনা করছে। সেখানে সে প্রার্থনায় আলাদা ছিল। দেখলাম যে আমার কষ্ট ও নিজের কষ্ট ভেবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। আমি খুবই অ্যাট্রাক্টিভ লাগলো এই কথাটা। ঈশ্বরের বাক্যতে বলে, বাইবেলে বলে, যোহন লিখিত সুসমাচারে, কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে তার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আজকে মানুষের এত ডিপ্রেশনে যাচ্ছে, এত প্রেশার হচ্ছে তাদের লাইফে, বাড়িতে প্রেশার, পড়াশোনার প্রেশার, রিলেশন প্রেশার, কত কিছু প্রেশার দিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের জীবনে যে রেস্ট
দরকার সে রেস্ট পাচ্ছে না, এদিক ওদিক খুঁজছে, দিনে এত কিছু ভাবছে কিন্তু কি ভাবছে কিছুই জানে না, নিজেকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে কিন্তু সবার সামনে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি খুশি আছি বলে। কি আজকে আপনি চান যে এই যে ডিপ্রেশনটা আজকে হয়তো আপনি উপভোগ করছেন, আপনি হয়তো নিজেকে এইটা ভাবছেন, কিন্তু ঈশ্বরের ভালোবাসাটা বিশ্বাসযোগ্য ভালোবাসা, সে কমিটমেন্ট ভালোবাসা, সে একটা উইলের ভালোবাসা। আজকে আমি এই কথাটা বুঝলাম, সে লাভটা বুঝলাম যে ঈশ্বর যে আমাকে ভালোবাসে, সে বিশ্বাসযোগ্য আছে। আমি হয়তো প্রথমে ঈশ্বরকে চিনতাম না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ধরে রেখেছিল, আজকেও আমাকে ধরে রেখেছে আর পরেও আমাকে ধরে রাখবে। আজকে যে লাভটা আজকে আমাকে সে শান্তি দিয়েছে, আজকে আপনাকেও সে শান্তি দেবে যদি আপনি ঈশ্বরকে নিজের জীবনে গ্রহণ করবেন। একটা উদাহরণ দিয়ে আমি এই বাক্যটাকে শেষ করতে চাই। একজন গার্লফ্রেন্ডকে বলছে আই লাভ ইউ, আর যদি গার্লফ্রেন্ড সে প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তবেই সে বয়ফ্রেন্ডের লাভটাকে অনুভব করতে পারে। সেই রকমই আপনি যদি ঈশ্বরের ভালোবাসাটাকে গ্রহণ করতে চান, আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে হ্যাঁ ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে বলে, তারপরেই আপনি সেই আপনার লাইফে সে ফলদায়ক আপনি নিজের জীবনে অনুভব করবেন। Hey guys, we're from New Life City Church, Chandigarh, and we want to congratulate the Shari Movement for completing 5 years in ministry. I'm sure this has been an amazing journey with Lord, and I want to share this word with you which says, this is done by the Lord and it's marvelous in our sight. I'm sure that the journey that you took was decided by the Lord, and I'm sure this was a marvelous journey. You might have experienced a lot of testimonies, a lot of experiences that God has given you, and let's celebrate this. Let's worship together. Come on. ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में, ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं, यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। एक साथ मिलके तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं, यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं, तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। यीशु यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है
साथ न छोड़े तू मेरा कैसा अनोखा प्यार तेरा साथ न छोड़े तू मेरा. I'm sure in this coming days He will never leave you, He will never forsake you. May God bless you all. Thank you. Hello Dishari, and I'm so happy that I got this opportunity to share something with you all again. So God is faithful. He is faithful indeed. So in 2 Thessalonians verses 3, it says like this, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. So God is faithful. The story of Dishari movement is truly a story of God's faithfulness in our life. We can reassure ourselves that God is faithful, and the meaning of Dishari means the people who show the path. So I think Dishari has great impact in your life also, as it had great impact in my life. So in first Dishari I went as a facilitator. Though I went as a facilitator over there, but God taught me so many things in Dishari. My life got very nicely, very vastly impacted through the Dishari movement, and I was moved when I went there in Kharagpur. The people over there, everything was unknown to me, but when God called me for Dishari to go and lead in Dishari, I made myself available, as well as my whole Bible study group. They all made themselves available. I was student those days when first Dishari happened in Kharagpur, and I was very busy also, as I am a medical student. I was very busy, but I made time from my schedule, and I given priority to God during my student life. So God has blessed me with many things in Dishari, during Dishari, and after Dishari. He kept on blessing me. He kept on His words, His promises in my life. So presently I am working in a mission hospital in Chhattisgarh. So I always had this heartfelt desire inside my heart that I should serve the real India, the rural India, where the people are dying without healthcare professionals. People are suffering because they don't have good healthcare professionals in villages in rural India. So God gave me this opportunity to come here in Chhattisgarh and serve in His mission hospital. So presently I am working over here, and God has been faithful. The day when I came over here, so during the time of this corona, I came here, and even I flight from Kolkata to this place, I was tested negative also in corona, because I had to go through testings. So I have been tested negative. He has been faithful to me, and now I am seeing so many patients over here, and God is using me mightily for His mission. So I just want to encourage all of you that we serve a faithful God, and He is able to help you when even you are weak. During the time of Dishari, when I went there as a facilitator, I was not that trained. I was not knowing how to lead, but still God used me. God used me to help others. God used my whole Bible study group to help in leadership, to lead others when there was great need of Dishari movement in Kharagpur. So it has been great opportunity for me
being a part of Dishari. And when I am now not there in Kolkata or in Kharagpur, I can still share my experiences and this story of faithfulness through you. I feel myself very blessed because of this opportunity. So you can see some pictures of my hospital where I am presently working, and you can see how God is using me. And there are so many missionary doctors who are working with me with the same vision to serve people with the love and compassion of Jesus Christ. Thank you everyone, and have a great time ahead in your life. और सब जन है दिशारी, आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। तुम और हम और सब जन है दिशारी, आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। दिशारी का काम है सबको दिशा दिखाना, यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। दिशारी का काम है सबको दिशा दिखाना, यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। तुम और हम और सब जन है दिशारी, आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। उस रोशनी देने, जो कस्म था उसे सहायता करने। जो अंधेरों में था उस रोशनी देने, जो कस्म था उसे सहायता करने। यीशु ने कहा मुझे, यीशु ने सिखाया है हमें, यीशु ने कहा मुझे, यीशु ने सिखाया है हमें। तुम और हम और सब जन है दिशारी, आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। तुम और हम और सब जन है दिशारी, आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे बढ़कर है जो मेरे पहले था। परमेश्वर का पुत्र राजाओं का राजा, यीशु है वो नाम हर नाम से ऊंचा। आओ और देखो यहाँ मुक्ति और शांति है जहाँ। आओ और देखो यहाँ मुक्ति और शांति है जहाँ। तुम और
और सब दिन है दिशारी। आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी, तुम और हम और सब दिन है दिशारी। आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। दिशारी का काम है सबको दिशा दिखाना, यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। दिशारी का काम है सबको दिशा दिखाना, यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। तुम और हम और सब दिन है दिशारी। आओ और देखो क्या करते हैं दिशारी। दिशारी 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 दिशारी। हेलो एवरीवन, जॉय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। दिशारी के 4थे साल के एनिवर्सरी में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं प्रदीप कोलकाता से इस दिशारी फैमिली के साथ फ्रॉम द बिगिनिंग 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस जर्नी में हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जान सके एक दूसरे से। इस फैमिली के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे घटना, मेमोरीज मुझे याद है जब कैंप के दौरान। तो उन्हीं में से एक मुझे अभी याद आ रहा है कि जब 2016 में हम लोग वो कैंप किए थे अप्रैल के महीने में। तो पहला दिन वो था हम लोग का रजिस्ट्रेशन करना था। जो 2 लोग स्टूडेंट लोग आ रहे हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो दायित्व मुझे और जयश्री को दिया गया था कि हम लोग सुबह बैठेंगे और जो लोग स्टूडेंट लोग आ रहे हैं उन लोगों का नाम एंट्री करने के लिए। तो सुबह जब मैं पहले आ गया तो जयश्री कुछ काम की वजह से वो नहीं रह पाई मेरे साथ। तो विक्टर भैया बोले कि ठीक है तुम और एली बैठना। तो मैंने रात को एली से मुलाकात हुआ तो एली बोले ठीक है भैया मैं और आप बैठेंगे। तो सुबह मैं रजिस्ट्रेशन डेस्क में बैठा था और बैठ के मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब एली आएगी, हम दोनों एक साथ मिल काम करेंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट हो गया, तभी भी एली नहीं आई थी। लेकिन मैं जब बैठा था तो दूर मैं देख रहा हूँ वो आ रही है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, अकेला अकेला काम कर रहा हूँ, वो आ रही है तो कुछ हाथ काम में हाथ बटाएगी। तो वो जब आ रही है तो मैंने वो जब एकदम डेस्क के सामने आई वो देख के स्माइल की, मैं भी स्माइल किया और वो बोले कि हेलो भैया। हाँ हेलो क्या कर रही हो, बैठो काम है। वो मेरा मुंह ताक रही है, मैं भी उसका मुंह देख रहा हूँ। मैं बोला क्या मजाक चल रहा है, कितने सारे स्टूडेंट आ गए और मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे हेल्प आउट करो। हम दोनों को ये दायित्व दिया गया है कि हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। वो ऐसे मुंह देख रही है, फिर बोले नहीं भैया मैं एली नहीं हूँ, रात तक तो थी, अभी कैसे चेंज हो गई। तो बोले नहीं मैं एलिशा हूँ, उसकी बहन, हम दोनों ट्विन्स है, वो देखिए वो आ रही है। तो मैं फिर देखा कि सच में वो एली आ रही है जिसके साथ मुझे रजिस्ट्रेशन में डेस्क में बैठना था। तो तब पता चला कि दोनों बहनें ट्विन्स है। तो पहली बार में मैं एकदम घबरा गया था कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारे मज़ेदार इंसिडेंट जुड़ा हुआ है ये जर्नी में 4 साल में। और केवल ये हम लोग जब एक साथ में जब हम लोग ये कैंप करते हैं या फेलोशिप करते हैं तो केवल हम लोग मस्ती नहीं करते, हम लोग एंजॉय नहीं करते, हम लोग परमेश्वर की बात भी सुनते हैं। तो ये ड्यूरिंग द 4 साल में परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ सिखाया। ये फैमिली के द्वारा, इस फैमिली के एक साथ में जुड़े होने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और फिर से और एक बार सभी को, दिशारी फैमिली के हर एक मेंबर को दिशारी के 4थे साल के एनिवर्सरी में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 4 साल हम लोगों को इतना आशीष किए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर और भी ज़्यादा आशीष करेंगे और भी बहुत सारे साल हम लोग एक साथ एक फैमिली होके सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं आमरा दिशारी। जय यीशु।
आप सभी को जय मसीह की। मैं नितिन लामा अबलेज म्यूजिक मिनिस्ट्रीज से और सिलीगुड़ी से हूँ और प्रभु का धन्यवाद कि ये समय उसने दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दिशारी मिनिस्ट्री को और साथ ही भाई अनाम को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, जिन्होंने मुझे निवेदन दिया ताकि हम मिलके एक साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। सो आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। सब कोई आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। सब कोई यीशु मैं आशिक तेरा। सब कोई आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आज तो मैं यीशु, सब कोई कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। मिलके गाएंगे। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। फिर से आज तो मैं यीशु, सब कोई कुछ ऐसा गाऊंगा। एक साथ आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। फिर से मिलके आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में
तेरा यीशु मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा ओ मैं आशिक तेरा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रावणी किस्को। मैं एक स्टूडेंट हूँ। प्रभु को जानने से पहले मेरा लाइफ बिल्कुल अंधेरे में था। पहले तो सब ठीक ही चल रहा था। मैं अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई को लेके मेरे बहुत सारे सपने थे और उन सपनों को पूरा करने की ओर मैं बढ़ रही थी। पर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा लाइफ बिल्कुल रुक गया। मैं बहुत बीमार पड़ गई, इतनी बीमार पड़ गई कि ना मैं पढ़ाई कर पाती थी ना कोई दूसरा काम। मुझे बहुत से डॉक्टर्स दिखाए गए, बहुत जगह ले जाया गया, पर कहीं पे भी मेरे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन नहीं निकला। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि खाने पीने, उठने बैठने के लिए भी मुझे दूसरों की सहारा लेना पड़ती थी। मैं अपने आप को एक बोझ समझने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरे वजह से मेरे फैमिली में कोई भी खुश नहीं है, सब लोग प्रॉब्लम्स में है, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मैं ही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी, मुझे किसी के साथ मिलना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही कई साल तक मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखी थी और बस रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई, मेरी करियर, मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं अपने चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा देख रही थी। मुझे लग रहा था कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि ना जिए। पर एक दिन ऐसा आया कि मेरी एक दोस्त आई और उसके साथ कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको मैं जानती तो थी पर कभी बात नहीं की थी। वो लोग मुझसे मिलने आए थे और वो मुलाकात कोई साधारण सा मुलाकात नहीं था। वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे, मेरे प्रॉब्लम्स में आए थे और वो प्रार्थना बहुत अलग था। उनके प्रार्थना में मुझे अपने लिए प्यार दिखा, अपने लिए केयर दिखा। वो लोग चिंता करते थे मेरे लिए। मैं सोच रही थी कि ये लोग ना ठीक से मुझे जानते हैं पर फिर भी मेरे लिए इतना प्यार। उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और एक दिन उन्होंने मुझे एक जगह पे लेके गए। मैं पहली बार उनके साथ बाहर निकली थी और वो जगह कहीं दूसरा जगह नहीं था, वो था ये दिशारी मिनिस्ट्री। और वो दिन आज ही का, ये एनिवर्सरी का दिन था। मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग परमेश्वर के लिए आनंद कर रहे थे, परमेश्वर के लिए नाच रहे थे, गा रहे थे। मैं पहली बार ऐसी जगह पे गई थी। मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के लिए प्यार है उनमें, एक दूसरे के लिए केयर है, एनकरेजमेंट है उनके अंदर। परमेश्वर ने उनके माध्यम से मुझे एक नया दुनिया दिखाया, एक अलग सा दुनिया। मुझे वहाँ पे एक रोशनी दिखा, एक आशा मिला। मेरे अंदर बहुत डर रहता था और वो डर मुझे कहीं ना कहीं दबा के रखता था। पर वहाँ पे जाके मैं अपने आप को खोल पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं आजाद हो रही हूँ। वहाँ जाके मैंने जीसस को जाना, जीसस के प्यार को जाना और मैंने विश्वास किया कि हाँ, कि जीसस ही मुझे अपने प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, मुझे वो ठीक कर सकते हैं। और वही विश्वास से मैं आज जीवित हूँ, वही विश्वास से मैं आज ठीक हुई हूँ। उन्होंने मेरा उद्धार किया, वही है उद्धार करता। उन्होंने मेरे प्रॉब्लम से मुझे निकाला और वो हम सबको हमारे प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। वो हमारे साथ चलते हैं, चाहे सुख में हो या दुख में। वो कभी हमें नहीं छोड़ते। वो अपना जीवन देके हमारा जीवन बचाया है। वही है उद्धार करता, वही है जीवन दाता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर एक सिचुएशन में वो मेरे साथ फेथफुल रहे। वो हर एक सिचुएशन से हमें निकाल सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकता है। He is the true savior. He is the only one who can save us. आइए हम प्रभु की थोड़ी देर आराधना करें।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। ओ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप
आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को और हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम ये कहना चाहते हैं प्रभु, तू हमें बहुत प्यार करता है, तो हमसे बहुत 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 प्यार करता है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या हम मिलके फिर एक बार ये गीत को गा सके? पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है, तू महान है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आराधना करिए प्रभु। धन्यवाद ये समय प्रभु आपने दिया कि ताकि हम आपके गीतों को और आपकी आराधना को कर सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता, आज की आराधना के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पे अलग अलग कहानियां होती हैं, और उन्हीं पन्नों में से एक कहानी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लाइफ की कहानी है। और उससे पहले मैं सभी को कहना चाहती हूँ जय मसीह की, और मैं दिशारी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बता सकूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम है सुष्मिता माइती, मैं खड़गपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई के सिलसिले में मैं कोलकाता में सेंट पॉल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स लेके 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे जीवन में हमेशा से बचपन से मुझे एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो है प्यार की। जो प्यार मुझे शायद बचपन में कहीं भी नहीं मिला, और जिसके कारण मेरे जीवन में एक खालीपन सा आ गया था। और वही खालीपन मैं पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के पास दौड़ती थी। जब मैं बड़ी हुई और मैं सोचती थी कि मेरे दोस्त मुझे समझेंगे और मेरे खालीपन को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक ऐसा सिलसिला आया जहाँ पे मैं इतनी टूट चुकी थी कि मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं खुद की ज़िंदगी को, खुद के जीवन को ख़त्म कर दूँगी। हाँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा दर्द भी देती थी, मैं खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती थी, और ऐसा भी डिसीजन मैंने लिया कि मैं सुसाइड कमिट करूँगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जितने बार भी मैंने ये काम करने का कोशिश किया, उतनी बार ये चीज़ नाकाम हुई, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। और 2016 4 नवंबर को 2016 में मैं पहली बार अपने एक दोस्त से मिलने जाती हूँ, और उस जगह पे जब मैं मिलने गई तो वहाँ पे मुझे कुछ भाई बहन मिलते हैं, और वो भाई बहन दिशारी फेलोशिप के ही कुछ भाई बहन होते हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। और मुझे उनमें कुछ अलग लगता है, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो वो मुझे बड़े प्यार के साथ मेरा स्वागत करते हैं। और मुझे पहली बार किसी ने उस वक्त वहाँ पे कहा था कि तुमसे परमेश्वर प्रेम करता है और वो तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्य कामों को करेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि उस दौरान जब मेरे ज़िंदगी में टूटेपन को मैं महसूस कर रही थी, उस वक्त कोई ऐसा बोल सकता है। और उसमें वहाँ में से कुछ भाई बहन ने ये भी कहा कि बहन, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं मिली जो मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जबकि मैं उस वक्त भगवान या किसी भी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे दिल में एक आकर्षण हुआ कि मैं उस फेलोशिप को और भी जानने पाऊँ, करीब से उन लोगों को जानने पाऊँ जिनका जीवन मुझसे और कई दूसरे लोगों से बहुत अलग था। तो मैं धीरे धीरे उस फेलोशिप में जाना शुरू की, और जितना मैं उस फेलोशिप में गई उतना मैं और भी प्यार के बारे में, खुशी के बारे में, क्षमा के बारे में जानना सीखी। और एक ऐसा दौरान आया जब मुझे याद है कि एक वक्ता आए थे और वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे एक वचन, जो कि बाइबल से वो कह रहे थे कि जो कि यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, और जो कोई भी उन पे विश्वास करे वो विनष्ट नहीं होंगे, लेकिन उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। और जब मैं ये वचन को सुनती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि कोई मुझसे प्यार करे ना करे, लेकिन परमेश्वर मुझसे हमेशा प्यार करता है, और उन्होंने इतना मुझसे प्यार किया है कि वो अपने जीवन को तक मेरे लिए दिया है।
और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं परमेश्वर को और भी करीब से जानूंगी और मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ एक नया जीवन व्यतीत करूंगी। और 2017 में 2 सितंबर को मैं ये ठान लेती हूँ कि मुझे उस पुराने जीवन में और वापस नहीं जाना, जिस जीवन का कोई मायने नहीं था, जिस जीवन का कोई मतलब नहीं था, जिस जीवन में सिर्फ दर्द और तकलीफ़ें थी। और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्य कामों को किए हैं। और मैं दिशारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और दिशारी टीम को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा काबिल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ उस वक्त मेरे हाथ को थामा जब मेरे साथ कोई नहीं था। उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की, मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और जब मैं डिप्रेशन में थी उस वक्त वो लोग मेरे साथ थे। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, परमेश्वर ने मुझे जितनी भी आशीषें दी हैं वो दिशारी टीम के माध्यम से मुझे मिली है। आज मैं कोलकाता में जब रहती हूँ, मैं अपने कॉलेज में मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, उनको मैं आज गाइड कर पाती हूँ, उनको मैं आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता पाती हूँ, और साथ ही साथ उनके साथ भी खड़ी होने पाती हूँ जबकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है। जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आके बताते हैं कि दीदी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं जानते हमें क्या करना चाहिए, तब मुझे एक ही चीज़ याद आता है जो मुझे दिशारी ने सिखाया है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो प्रेम इतना है कि वो अपने जीवन को दे दिया, और साथ ही साथ वो हमारे लिए एक आश्चर्य परिकल्पना रखे हैं। और उस दौर पे मैं अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ व्यतीत करना शुरू की। और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म बदलते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है हम एक रिश्ता बनाते हैं, जो रिश्ता परमेश्वर के साथ वो जीवन के साथ और उस प्रेम के साथ होता है। और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कोई सिचुएशन अगर आता है ऐसा जहाँ आप टूट जाते हैं, तो हाल मत छोड़िए, वहाँ हार मत मानिए, क्योंकि सही मायने में जब मैं कुछ साल पहले जब सोची थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगी, उस वक्त शायद परमेश्वर ही थे जिन्होंने मुझे वो करने से रोका। और इस वजह से आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे पाती हूँ कि आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ शायद उस दिन अगर मैं खुद के ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी होती तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। इसीलिए हर किसी के ज़िंदगी में एक सवेरा है, एक नया दिन है, और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी दिशारी के साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर ने दिशारी को कई सालों में, 4 सालों में बहुत आशीष किया है, और आने वाले सालों में भी परमेश्वर आशीष करेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। और उसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ सभी को धन्यवाद एंड जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 4th एनिवर्सरी ऑफ दिशारी। आज ये दिन में हम लोग आपके सामने एक पोएम पेश करने जा रहे हैं, which is totally dedicated to दिशारी। Hope you enjoy it। खोए थे हम सभी, ना था कोई किनारा, आज मिली है एक मंजिल प्रभु सिर्फ तेरे ही द्वारा। कोई था बेसहारा तो कोई था नशे में चूर, आज तूने बुलाया तो मैं आया हूँ अपने गलतियों से दूर। एक से बढ़कर एक को तूने किया सच्चा और काबिल, तूने ही तो दिया प्रभु एक नई चमकती हुई मंजिल। एक का जीवन बदला तो थामा दूसरों का हाथ, ऐसे ही बढ़ रहे हैं हमारे दिशारी एक साथ। जितने दिन जा रहे हैं मिल रहे हैं और भी दोस्त, तेरी ही दुआ से दिशारी है स्वस्थ और तंदुरुस्त। अकेलेपन हुआ दूर, जीवन हुई खुशी से भरपूर, एक दूजे का सहारा बनके हो गए हैं तेरे ही मजदूर। ये यात्रा ना था आसान, ना थे कभी हम तैयार, पर तेरे ही प्यार, विश्वास और भरोसा से हम मिलते रहते थे बार बार। इन 4 सालों में बहुत कुछ तुझसे है पाया, ढेर सारा धन्यवाद तुझे जो तूने इतना अच्छा भैया और भाभी को दिलवाया। दुआ करते हैं तुझसे ऐसे ही हम बढ़ते रहे सदा, मांगते हैं तुझसे प्रभु कि दिशारी बढ़ पाए इससे भी ज्यादा।
Hello guys, praise the Lord. मेरा नाम है चेतन and I hope all are doing great and yeah, even I am good. So आज मैं आपके सामने आया हूँ I want to share something to you guys and मुझे ये बोलना है कि परमेश्वर मेरे लिए मेरा कितना अच्छा चरवा है. Yeah, I know चरवा shepherd, what does it mean? इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो शेपर्ड है ये अपना शीप्स को काउंट कर रहा है और जब वो उसे पता चलता है कि उसका एक शीप मिसिंग है तो वो कितना उदास हो जाता है और वो जाता है अपना खोया हुआ भेड़ को ढूंढने के लिए. और बाद में हम देखते हैं कि उसे उसका वो खोया हुआ शीप उसे मिल जाता है. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर वो भेड़ ओबीडियंट होता तो वो कभी अपना रास्ता भटकता नहीं. लेकिन वो चरवा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. वो ये नहीं देखा कि मेरे पास इतने सारे शीप्स हैं लेकिन वो एक खोया हुआ शीप के लिए वो वापस गया, उसे ढूंढा और उसे वो लाया. सोचो गाइस, अगर वो शेपर्ड जाता नहीं तो क्या होता, शायद वो शीप मर जाता. लेकिन वो शेपर्ड उस शीप को वापस ढूंढने गया. गाइस, एक अच्छा शेपर्ड वो होता है जो अपना खोया हुआ शिप के लिए अपना जान भी दे सकता है. गाइस, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे थी. मैं भी कभी उतना ओबीडियंट था नहीं. मैं कभी अपना पेरेंट्स का बात उतना सुनता नहीं एंड मैं हमेशा बिना जाने अनजाने में मैं प्रॉब्लम्स में फंस जाता था क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि क्या सही है क्या गलत है. कभी कभार ऐसा होता था कि पता है मुझे कि वो गलत काम है लेकिन फिर भी मैं वो काम करता था. गाइस, मेरे लाइफ में कोई अच्छा चरवा नहीं था. मेरे लाइफ में कोई गुड शेपर्ड नहीं था. इसलिए मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थे. और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मत जाओ, रात हो गई है नॉल. बट मैं बिना उनका बात सुने मैं गया बाहर एंड मुझे बाइक स्पीड में चलाना बहुत पसंद है. लेकिन उस दिन मेरा फ्रेंड चला रहा था एंड मैं पीछे बैठा था एंड कुछ ऐसे हादसे हो गए कि हमारा एक्सीडेंट हो गया एंड उस दिन मुझे पनिशमेंट मिला कि मैं डिसोबीडियंट हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिला. एंड सबसे बड़ा गलती मुझसे ये हुआ कि मैंने अपना मॉम को रुलाया क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया. शी इज़ माई फेवरेट बट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज मेरा गलती ना डिसोबीडियंट रहने की वजह से मेरी मॉम को उस दिन रोना पड़ा एंड वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ. एंड गाइस, मैं एक खोया हुआ शिप की तरह रह गया. बट जब मैं रिकवर हुआ मैं पूरा लोनली सा हो गया. मुझे अफसोस था बहुत, तो मैं अकेला सा रहने लगा. एंड फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे दिशारी के बारे में बताया कि ब्रो क्या तुम दिशारी जाते हो. एंड आई वॉज भाई सुना तो हूँ बट फेलोशिप है कौन जाएगा. बट गाइस, उसने बोला कि वो बोरिंग नहीं है, वो बहुत एक्साइटेड है. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना फेलोशिप या मैसेज या क्लास सुनने से लगता है अरे यार बोर हो जाएंगे. बट दिशारी वॉज टोटली ऑपोजिट. इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, सो एक्साइटिंग. बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने को मिला. एंड फिर मैं दिशारी में गया एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ जाना. एंड पहला दिन इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं अपने को रोक नहीं पाया. एंड आज दिशारी में मैं भी एक लीडर हूँ गाइस, क्योंकि दिशारी ने मेरा लाइफ इतना चेंज कर दिया क्योंकि उसने मुझे एक सही दिशा दिखाई. मुझे उसने ये बताया कि मेरा लाइफ का शेपर्ड कौन है, जो मुझे पता नहीं था. मैं उसको फॉलो नहीं करता था. একটি যুবক ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেন উচ্চ শিক্ষার জন্য. এটা তার কাছে আউট অফ কমফোর্ট জোন একটা বিষয় ছিল এবং তিনি সেই বিশাল ভারতবর্ষ এবং এশিয়া মহাদেশের এক নামকরা ইউনিভার্সিটিতে তিনি গেলেন. আমরা সবাই জানি IIT খড়গপুর. এবং সেখানে গিয়ে তার মধ্যে একটা আগুন ছিল যে সে ঈশ্বরের জন্য কিছু করবে, ঈশ্বরের সুসমাচার, প্রভু যিশুর সুসমাচার স্টুডেন্টসদের মধ্যে দেবে, কারণ তার জীবনটা পরিবর্তন হয়েছে. সেখানে গিয়ে দেখলেন সুযোগ খুব কম, ওখানে অলরেডি কেউ কাজ করছেন. তিনি তাদেরকে সাহায্য করা শুরু করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করতে থাকলেন, বলতে লাগলেন যে প্রভু তুমি আমাকে দেখাও, তুমি আমাকে, আমি জানি শুধু পড়াশোনার জন্যই নয়, তুমি এখানে বিশেষ দর্শন, বিশেষ কাজে তুমি নিয়ে এসছো. এবং প্রার্থনা থাকতে থাকতে এই যুবকটি
দেখতে পারলেন যে ওই ক্যাম্পাসের চারিপাশে প্রচুর যুবক যুবতী রয়েছে যারা প্রভু যিশুর অনুগামী, তারা প্রভুকে ভালোবাসে এবং তারা প্রচন্ড ট্যালেন্টেড এবং গিফটেড। কিন্তু তারা জানে না কিভাবে সেই তাদের ট্যালেন্টকে, তাদের গিফটিংগুলোকে কি করে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কার্যকারী করবেন। ঈশ্বর তাকে দর্শন দিলেন, তিনি সবাইকে এক জায়গায় করলেন এবং সবাইকে এক জায়গায় করার পরে তিনি দর্শন দিলেন। ইতিমধ্যে তার বিবাহ হয়েছে, স্বামী স্ত্রী মিলে তারা দুজনে মিলে প্রত্যেককে ডেকে তারা দর্শন দিলেন। তারা বললেন যে আজকে তোমাদের গিফটিং ট্যালেন্ট আজকে ওয়েস্ট করার জন্য নয়, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কার্যকারী করার জন্য। আমাদের দর্শন যেমন ঈশ্বর আমাদের তৈরি করেছেন, তারা বললেন তোমাদেরকে ঈশ্বর তৈরি করবেন, তোমরা অন্যদেরকে তৈরি করবে। মাল্টিপ্লিকেশন, যেটা শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। এবং প্রত্যেকটি ইউথ তারা দর্শন পেল, তারা খুঁজে পেল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তারা হলো চল আমরা কিছু করি। এবং তারা প্রথম ক্যাম্প করেন 2016 সালে এবং সেই ক্যাম্প প্রচন্ড রকমভাবে সাকসেসফুল হয়। প্রচুর যুবক যুবতীর জীবন পরিবর্তন হয়। প্রত্যেকটি বাবা মা বলছেন দুর্দান্ত ঈশ্বরের কাজ। প্রত্যেকটি মণ্ডলী, বিভিন্ন ডিনোমিনেশন মণ্ডলী তারা একসঙ্গে এসে সাহায্য করা শুরু করলেন। এবং শুধু তাই নয়, ওখানে বিশেষ কিছু জনকে ঈশ্বর রেখেছিলেন যারা তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। 2016 সালের ক্যাম্প দুর্দান্তভাবে হয়। তারপর 2017, তারপর 2018 পরপর ঈশ্বর সেই ক্যাম্পকে আশীর্বাদ করলেন। সেই ক্যাম্পের নাম হচ্ছে দিশারি এবং আজকে দিশারি 4 বছরে পা দিয়েছে। এই দম্পতি ভিক্টর আর সীমা, এই দুজন আজকে ওই অঞ্চলকে পরিবর্তন করেছে। প্রচুর ইউথদেরকে তাদের জীবন পরিবর্তন হয়েছে, তারা আজকে দর্শন পেয়েছে, তারা আজকে এগিয়ে এসছে আন্দোলনের জন্য, আত্মিক আন্দোলনের জন্য। এবং তারা অনেক ইউথদের জীবন পরিবর্তন করছে, অনেক চার্চের রিভাইভাল এখন এসছে। এবং শুধু তাই নয়, এই ইউথরা তারা অঙ্গীকার করেছে তারা অন্যদেরকে নেতৃত্ব দেবে, অন্য লিডার্স বিল্ড আপ করবে, মাল্টিপ্লাই করবে তারা। এবং সেটাই হয়েছে। এই 4 বছরে ওই অঞ্চলে প্রচন্ড রকম স্প্রেড করেছে ঈশ্বরের কাজ। কলেজ, ইউনিভার্সিটি, স্কুল, পাড়াতে আজকে প্রচুর জন আজকে প্রভু যিশুকে জানতে পারছেন। এবং এই আন্দোলন আজকে 4th অ্যানিভার্সারি, 4th অ্যানিভার্সারিতে যুক্ত হয়েছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে আরো অনেকে যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কলকাতার স্টাফ তারা অনাবরত তাদেরকে গাইড করে গেছেন। এবং আজকে এই দিশারি একটা বড় মাত্রায় একটা বিশ্ব মানের আন্দোলন হিসেবে তৈরি হয়েছে। প্রচুর এক্সাম্পল তারা আজকে তুলে ধরছেন। তারা একটা রোল মডেল মুভমেন্ট আজকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য শুধু নয়, ভারতবর্ষ এবং সাউথ এশিয়া, বিশ্বের জন্য। 4th বছর, আরো অনেক বছর আসতে চলেছে। একটি যুবক, একটি দম্পতি, তাদের দর্শনে আজকে এতজনের জীবন পরিবর্তন হয়েছে। আপনিও সেটা করতে পারেন, আপনিও দিশা দিতে পারেন। আর এই জন্যই দিশারি আজকে গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আপনাদের এখানে থাকার জন্য। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। Thank you for being a part of this fellowship, the 4th anniversary of Dishari, Abhari, Amra Dishari. It was really good to have this wonderful fellowship today. Yes, it has been really 5 years of God's faithfulness, starting from year 2015. We have got so many brothers and sisters, and now truly you all have become family, and we call it Dishari family. And Seema, if you remember that the whole vision of Dishari, the idea of Dishari was that we should work together as one body, and we have found really a beautiful family, and that's why this Dishari family is so special to us. And we would like to congratulate everyone
फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग सबको अभिनंदन देना चाहते हैं जो पहले से ये दिशारी मूवमेंट के साथ थे, अभी भी है। और कुछ लीडर्स हैं जो बहुत हेल्प किए हमें, जैसे वी कैन नेवर फॉरगेट प्रदीप अंकल, लैमुएल अंकल ऑफ रेहोबोथ चर्च, पास्टर डॉन जो हर वक्त हमारे साथ थे, सब कैंपस क्रूसेड के जो स्टाफ, जब भी हमें कुछ चाहिए था they were always there with us. Pastor Sanjay Nag, Pastor Amos Nayak, Thomas uncle, Vijay uncle, the Ward Memorial Church for instance, Union Church, Hiradi Church, Midnapur Church, Salua Church, and even Mr. Samuel Das of Ward Memorial School. Like, it was such a beautiful thing to see that all people of God were together in this beautiful movement helping us. And in the beginning we even had so many good friends like Suresh, Chugal, Chandan, and the first meeting you remember in the Hiradi church with Joy Shri, Manju, Lawrence, and still they are today. It's a beautiful thing. Truly, we really want to thank each and everyone. सबका योगदान इस मूवमेंट में भरपूर रहा है, and the way we all have like done this movement, we have done so many things, we have enjoyed, we have like learned so many things from each other. And it was really a journey of enjoyment where we really did learn. We came closer to God. We could even have a lot of fun. And truly, जब हम दोनों अभी वहाँ से थोड़ा दूर है, पर we don't think that the movement has died out. क्योंकि ये प्रभु का जो काम है वो चलता रहेगा। और आज के ये फेलोशिप के लिए मैं सबको हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ कि what a beautiful fellowship, what beautiful testimonies that within these 5 years what God did through our lives. Even I want to take this opportunity to thank my friends in Chandigarh, the New Life City Church, and it was like I was a big fan of them. I used to see their videos, and when I went to Chandigarh, I happened to visit that church, and that's a beautiful bond, and I requested them, and they sang such a beautiful song. Thank you, Simon and Samuel. It was really, it's an honor. Truly, we are, when we see that the team is still working so hard in every fellowship, in preaching the gospel, because we also believe that this work was not initiated by people, but it was initiated by God, and it will be continued by God, truly. So on this beautiful day, I really want to encourage everyone with a scripture. It says, 2 Corinthians chapter 13 verse 11, finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Yeah, thank you, Seema. That's a very encouraging message. Let's close our eyes for our closing prayer. And once again, thank you, everybody. If we have missed out anyone's name, please don't mind, but we, from our heart, really want to thank all of you. Let's close our eyes in prayer. Hallelujah. Father Lord, we thank you for this wonderful time, O Lord, that these 5 years, O Father Lord, we've seen your faithfulness. We thank you as we celebrate this 4th anniversary of Dishari, O Father Lord, and we know that this is not the end, that there will be greater things to come, O Father Lord. We just want to be grateful to you, O Father Lord. With a grateful heart we come and we say that, Lord, whenever we needed you, whatever we required, O Father Lord, you provided. There were so wonderful testimonies we heard, O Father Lord, and we know that you will multiply this work, O Lord Jesus. We thank you for every single thing. This prayer we ask in the precious and holy name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. It's time to sign off. There are some more, I think, congratulation videos or something is there. But yeah, good. The digital team has done a great thing. Okay, bye. Signing off from Mumbai. Hey Dishari team, congratulations for completing your 4 years. Praise God for your commitment, passion. और ये 4 साल में प्रभु ने बहुत काम किया खड़गपुर में. बहुत से स्टूडेंट की लाइफ चेंज हुई है, बहुत से टेस्टिमनी आए, एंड हम लोग की प्रार्थना हरदम आपके साथ है. प्रभु आपको आशीष करे. ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू. हे दिशारी टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 more year ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस. जब आपके जीवन को देखते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होती है. यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें परमेश्वर के लिए ज्योति और नमक बने रहें.
कॉन्ग्रेचुलेसन्स दिशारी टीम फॉर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ योर जर्नी सक्सेसफुली। ऐसे ही हम सभी लोगों को एंटरटेन, गाइड और इंस्पायर करते रहना। प्रभु की उपस्थिति में अपने हार्डवर्क और जो पैशन है उसको मेंटेन रखना। ऑल द बेस्ट। हेलो दिशारी टीम, অভিনন্দন। আমরা 4 বছর অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে যাচ্ছি এই দিশারির জন্যে। প্রার্থনা করি ঈশ্বর এই দিশারি ফ্যামিলিকে প্রত্যেক দিন আরও বৃদ্ধি দিক, আরও তার কাজে ব্যবহৃত করুক। আমরা দিশারি। এভরিওয়ান, আমরা দিশারি পরিবার হিসাবে একটি ছোট্ট জায়গা থেকে শুরু করে এত বড় পরিবারে আমরা আসতে পেরেছি, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আর এই দিশারি মুভমেন্টটাতে যে আমাদেরকে যিশু বাবা একটা পাঠ করেছে, তাই যিশু বাবাকে ধন্যবাদ দিই। হ্যাপি বার্থডে দিশারি।